Good morning, one and all. Today is 28th May 2021 and we'll be taking cloud computing security. The second remedial session on cloud computing. We'll be talking about the security. So in security, we will be talking about data security, network security, and host security. So we'll be covering these three topics in the today's session. Let's talk about data security. When we talk about data security, data means what? The information which is stored on cloud, and that information which is available on the data center or on the storage on the cloud, that should be secured from the outside world, should be used only by the person who has created that, or it should be used by the person who is having privileges. So to do that, the main thing is how the data can be secured. So the very basic mechanism to secure the data is through encryption. Encryption means what? To hide the information uh, in some way so that it will not be available in its original form. The information which is available in the database is to be hidden, and whenever the information or the data travels through the network, it is not in its original form but in some other way it travels. After it receives at the destination part, the data is again decrypted, means the original information is being gained. So to de-encrypt the data, the key is being required, which should be sent by the sender so that the data can be regained. We can take the example. Say for example, I would like to encrypt the information that I am a teacher. Suppose this is information. This is the information I would like to encrypt or would like to transfer it from source to destination. Then the mechanism to do that is creating a key for that. So let's say for example the key will be the next letter which is being given over here. I का next letter क्या है? J. A का letter B. M N. A का B. So +1 will be the decrypted password for this. T का U. E F. A का B. R का S. C D. H I. E F R S. So this is your original information, original data, and this is encrypted data. And then the entire data will be decrypted in the original form using the key. What is the key? Key is -1. The original information, the encrypted information, once it is received, the key will be sent by the sender to decrypt it. तो एनक्रिप्शन मीन्स व्हाट? एनक्रिप्शन के बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, RSA एल्गोरिथम है और बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स है टू hide the information. So this is first way of providing the security in the cloud environment, that is under the data security. So encrypt sensitive data in the database and memory. Decrypt it only when needed. So information will be decrypted only when it is being required, and how the information is being decrypted by the password or the key provided by the sender. Now encrypted backups and network communications. So the backups when will be taken, so those backups must be encrypted, and the network communication, over the network communications, जब इंफॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल होगा, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, जब डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास में जाएगा तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, और रिसीवर से जो रिसीवर है वो क्या करेगा? उसको डिक्रिप्ट करेगा। सोर्स में उसके साथ में और क्या सेंड किया? उसके साथ में की सेंड किया, तो उसको की पासवर्ड जो भी सेंड किया है उसको उससे डिक्रिप्ट करेगा। तो
over the network communication this happens. So in cloud data, cloud data is stored somewhere and we don't know where exactly the information is being stored. So that is also one of the data security mechanism. So intruder does not know where the information is stored on the cloud. Then the network traffic exchanging data between the instances is not visible to the other virtual host. So any virtual host who is accessing the data doesn't know who else is accessing the same data, or how the network traffic exchanges the instances from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, तो होस्ट को ये पता ही नहीं रहता कि किस तरह से नेटवर्क ट्रैफिक वर्क कर रहा है. Then for most cloud storage services, access to data is private by default. मतलब जो data storage में store रहता है वो उसकी accessibility किसी को भी नहीं पता होती. Even if the physical location is also known, you cannot know how the data is being stored and where the data is being stored on the cloud. So many, including Amazon S3, nevertheless allow you to make that data public. Never this Amazon or Amazon storage services, SSS is Amazon storage services, they do not allow their data to be public, even if you want to access that information, even if you want to know where your data exactly being stored on the cloud, तब भी वो बताता नहीं है कि आपका इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है. तो जब हम एनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो एनक्रिप्शन के अंदर 3 कैटेगरीज है, एक नेटवर्क ट्रैफिक, एक बैकअप्स और फाइल सिस्टम. अभी हमने जैसे नेटवर्क ट्रैफिक की बात की, मतलब जब हमारे पास में एक सेंडर है, ये डेटा सेंड कर रहा है और ये रिसीवर है एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रैवल्ड थ्रू द चैनल. तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल हो रही है इसमें नेटवर्क ट्रैफिक रहता है. नेटवर्क ट्रैफिक मीन्स डेटा विच इज बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू द चैनल. तो इस चैनल का जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी इस इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म. एनक्रिप्टेड फॉर्म मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है उसको एनक्रिप्ट किया हुआ है, हाइड किया हुआ है और तब इसको इस चैनल से सेंड किया गया है सेंडर के पास में. अब सेंडर के पास में जब ये रिसीव हो जाता है तो सेंडर जो है वो इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आता है. तो जो नेटवर्क ट्रैफिक रहता है उसको भी पता नहीं चलता, चाहे वो ट्रैफिक कितना भी हो, कुछ भी हो. इवन एक सेंडर ने पहली बार जब सेंड किया इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट्स, स्ट्रीम्स, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंड हो सकता है. पैकेट्स आर द इक्वल साइज डेटा ब्लॉक्स. तो like in any of the basically that function is being done by the operating system. ये जो function है वो कौन करता है perform? Operating system is basically responsible for sending the information from one system to another system. Here also the operating system is responsible. On the operating system there are some apps through which the data is being transferred through the protocols. We will be seeing all those protocols, HTTP, HTTPS करके protocols चलते हैं, उनके थ्रू information जो है operating system ऊपर से सेंड होते हैं. अब जब बैकअप लेते हैं, बैकअप मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, ये सपोज एक होस्ट मशीन है, दिस इज माय होस्ट मशीन. ऑन द होस्ट मशीन द इंफॉर्मेशन डेटा इज बीइंग स्टोर्ड. यहाँ पर होस्ट मशीन पे डेटा स्टोर है. अब ये डेटा जो है इसको इसकी एक कॉपी क्रिएट की जाती है. कहाँ पर कॉपी क्रिएट होगी? या तो इसके खुद के हार्ड डिस्क में या फिर समवेयर ऑन द अदर रिमोट लोकेशन. ये रिमोट लोकेशन की हार्ड डिस्क है. यहाँ पर अगर इसको इंफॉर्मेशन को कॉपी करके रखना है तो यहाँ से यहाँ तक जब वो ट्रैफिक होगा, नेटवर्क ट्रैफिक में इंफॉर्मेशन कॉपी हो रहा होगा या बैकअप ले रहा होगा, उस समय भी ये जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप होगा. यहाँ पर जब ओरिजिनल जो डेटा है वो यहाँ पर रिमोट लोकेशन पे जब ट्रैवल होकर जाएगा तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल होगा. स्टोर होगा तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा. बैकअप होगा तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप लिया जाएगा. बैकअप मतलब टू कीप अ कॉपी ऑफ द data store at some location in the cloud so that in case of this information, original information available at the host is hacked or is being damaged, then this can be recovered again. यहाँ से ये recover किया जा सकता है. Then the third encryption form is the file system. File system जो रहता है ये हर जो operating system है, ये operating system feature provide करता है file system का. मतलब the way the data is being organized in the memory,
तो एक मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट रहता है. इन मेमोरी मैनेजमेंट द इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड, the information is being stored. So how that information is being stored is being decided by the file system of the operating system, and this is totally related with the operating system part. तो अगर मैं NTFS एक फाइल सिस्टम रहता है, फैट फाइल सिस्टम रहता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, लाइनेक्स का EST2 फाइल सिस्टम रहता है. ये अलग अलग फाइल सिस्टम्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फाइल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मैनेज रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क है. तो ये जो फाइल है, अगर फाइल जो है मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है, दिस इज माय मेमोरी, इफ एनी फाइल व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इन द मेमोरी, so it is using the memory management file system concept to encrypt the information and then store into the memory. मतलब जब भी डेटा स्टोर होगा तो डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा. तो फाइल सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल टू कीप द डेटा इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म, एंड व्हेनेवर इट इज बीइंग रिक्वायर्ड फ्रॉम द मेमोरी इट इज ऑलवेज बी डिक्रिप्टेड. तो जब स्टोर हो रहा है तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जब निकल रहा है तो डिक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है. मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है दैट नेवर ट्रेवल्स ओवर द नेटवर्क, दैट नेवर बीइंग यूज्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म. वो जब भी यूज करना हो तो फिर वो डिक्रिप्ट करके ही यूज किया जा सकता है. तो ये जो तीनों मैकेनिज्म्स हैं एन्क्रिप्शन के, मतलब तीनों चीजें जब होती हैं तब हमारा डेटा जो है वो एनक्रिप्ट होता है, तभी ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. नेटवर्क ट्रैफिक के टाइम पे भी, बैकअप्स के टाइम पे भी, और फाइल सिस्टम जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, तब भी हमारा इंफॉर्मेशन, तब भी डेटा जो है दैट इज ऑलवेज बीइंग एनक्रिप्टेड. ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ is the screen visible to you? Process of starting a virtual server with encrypted file system. अब ये देखो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है एनक्रिप्शन का, जो हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे, एनक्रिप्ट फाइल सिस्टम. सो हाउ द फाइल सिस्टम विल बी एनक्रिप्टेड in the virtual server. Process of starting a virtual server with encrypted file system. Virtual server means what? The server which is being available not on the local host, but it is being available in the virtualization environment. Virtualization means it appears to be the system which is available at your local host, but it is not exactly available. मतलब हम उनके remote location के features को जब हम access कर रहे हैं, and it appears that you are working on it. If you have seen Team Viewer, एक Team Viewer करके software रहता है, तो using that software you can access the remote location, PC, tab, computer, mobile, कुछ को भी आप access कर सकते हो. The one way is only to give the accessibility through the password. सिर्फ उसको आपको ID और password supply करना पड़ता है. तो by sitting over here I can access your mobile. So that type of virtual environment is being created with the virtual servers. So virtual servers के साथ में जब हम virtual server start करते हैं तो फाइल सिस्टम कैसे एनक्रिप्ट किया जा सकता है जब हम वर्चुअली लोकेशन को, रिमोट लोकेशन को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो EC2 इलास्टिक क्लाउड टूल्स, Elastic Clouds, these are the tools which are available. This is Elastic Cloud, this is virtual servers, and this is block device. Okay. Now the run instance with encrypted key password. अभी मैंने बताया था encryption means what? The process of hiding the information, giving supplying key to it. मतलब कुछ एक formula, कुछ key लगाएंगे, और ये that with encryption this run instance through the tool is being encrypted. मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा डेटा है, जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में है, उसको एनक्रिप्ट करके उसको सेंड कर रहे हैं क्लाउड को, इलास्टिक क्लाउड को. थ्रू टूल्स इट इज बीइंग सेंड टू द क्लाउड विद अलोंग विद द पासवर्ड. पासवर्ड भी बताना पड़ता है, बट पासवर्ड इज बीइंग सेंड इन सम अदर वे. नाउ इन इलास्टिक टू क्लाउड it uses a launch, it launch on the virtual server. तो जो हमारा virtual server है उसके ऊपर ये launch होता है. Server is not available at a local host, it is always available at a virtual server, is always available somewhere in the remote location. तो virtual server पे इसको launch किया हुआ, and from the virtual server it gets the parameters whatever is being required by the virtual server.
it takes it from the elastic cloud in the form of a parameter. So get parameter function is being called over here. After it receives all the information and launches it, it decrypt with the की पासवर्ड. जो इसने एनक्रिप्शन से की पासवर्ड दिया था, तो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो यहाँ पर रिसीव हो गई, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में थी. एनक्रिप्टेड को डीक्रिप्ट किया गया, मतलब उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आया. ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आने के लिए हमको उसके साथ में जो की था वो भी पता चल गया. जैसे सिंपल एनक्रिप्शन मैंने बताया था, आई एम अ टीचर, तो उसको हमने एनक्रिप्ट करके आई को नेक्स्ट लेटर दिया, एक एक +1 कैरेक्टर करके रखा, और वो जो की है वो इसके साथ में ट्रैवल होकर वर्चुअल सर्वर के पास में आ गई. वर्चुअल सर्वर ने उसमें -1 कर दिया. सेंड करते टाइम पे +1 हुआ, जब रिसीव हुआ तो उसने बोला कि आप -1 का फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास में ओरिजिनल डेटा आ जाएगा. सो डीक्रिप्ट विद द की पासवर्ड. एंड आफ्टर दैट the mount key block devices. So these block devices are the devices which allows its port to access the external storage media. जैसे कोई CD ROM रहता है, पेन ड्राइव है, USB पोर्ट के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगा है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन डिवाइसेस को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली हम अगर ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम लाइनक्स, उबंटू, यूनिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इन्हीं के ऊपर क्लाउड के जो बेसिक चीजें हैं वो रन होती है. माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स बट इट इज कॉस्टली. सो बेसिक थिंग्स आर बीइंग डन बाय द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब भी कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लगाई जाती है जहां इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है, तो उन डिवाइसेस को माउंट करना पड़ता है. तो यहाँ पर माउंट की भी यूज किया. सो माउंट की इज बीइंग यूज्ड सो दैट the external storage media on the virtual server can be utilized to perform the data security options. So this is how the process of starting a virtual server with encrypted file system works. कहाँ से हो रहा है run instance, encrypted password, then it launches and gets the parameter whatever is being required by the virtual server, decrypt those passwords, and after it decrypts it gets the original information. Original information को मिलने के बाद में जो हमारे पास में एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है उसको माउंट किया जाता है और फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. तो ये फाइल सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है ब्लॉक डिवाइसेस में, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे कोई एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया हो या मेमोरी हो, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर किया जाता है. पहले उसको माउंट किया जाता है. तो माउंटिंग प्रोसेस के टाइम पे भी एन्क्रिप्शन फॉलो होता है. सो फाइल सिस्टम विल बी माउंटेड एंड देन माउंट करना की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक जो एनवायरनमेंट है उसका फाइल सिस्टम अलग होगा, जो एक्सेस कर रहा है, जो सेंडर है उसका फाइल सिस्टम अलग होगा, और जो रिसीवर है उसका फाइल सिस्टम अलग होगा. तो अगर ये इस तरह से है तो उसको माउंट करना पड़ता है सो दैट इट कैन गेट सिंक्रोनाइज्ड विद द other file system and it gets stored over there. Now let's see the difference between the decryption technology which is being traditionally used and which is being used by the cloud. जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिक्रिप्शन था वो है लाइक इट नीड्स डिक्रिप्शन पासवर्ड बिफोर माउंटिंग फाइल सिस्टम. मतलब जब ये माउंटिंग का प्रोसेस होती है तो पहले ही, माउंटिंग के पहले ही उसको पासवर्ड मालूम होना चाहिए डिक्रिप्शन में, जो ट्रेडिशनल वे था. बट अगर ये क्लाउड सिस्टम इंक्लूड कर रहा है तो नो नीड टू स्टोर द डिक्रिप्शन पासवर्ड्स. डिक्रिप्शन के पासवर्ड्स को स्टोर नहीं करना पड़ता. यहाँ पर डिक्रिप्शन का पासवर्ड को पहले से ही पता होना चाहिए ताकि वो फाइल सिस्टम को माउंट कर सके. पर क्लाउड सिस्टम के साथ में वो ऐसा नहीं है. डिक्रिप्शन जो पासवर्ड है वो उसी समय उसी टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है. दैट कैन बी सेंड थ्रू सम अदर वेज थ्रू द क्लाउड. देन इट स्टोर्स एन अनएनक्रिप्टेड रूट फाइल सिस्टम. जो रूट जो रहता है, रूट इज द बेसिक super user or the administrator of the Linux operating system or the Unix operating system, और उसका जो फाइल सिस्टम रहता है उस फाइल सिस्टम में अनएनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एज इट इज अवेलेबल ऑन द लोकल होस्ट पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ऐसा क्लाउड के ऊपर नहीं होता. इट प्रोवाइड डिक्रिप्शन पासवर्ड टू वर्चुअल इंस्टेंस ऑन स्टार्टअप. जब भी शुरू होता है, स्टार्टअप होता है, इंस्टेंसेस शुरू होते हैं, वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अप कुछ जो फाइल्स इनिशियलाइज होती हैं, उनकी इनिशियल वैल्यूज होती है, उसी समय जो क्लाउड है वो क्लाउड एनवायरनमेंट में वो जो उसका डिक्रिप्शन का पासवर्ड है वो सप्लाई कर देता है. तो वो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, सर्वर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वो शुरू हो जाता है.
हियर इन क्लाउड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. अब हम डाटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इन डाटा सिक्योरिटी वी हैव सीन encryption decryption mechanism. So it adds an extra layer of security into mix by encrypting the password and store key in a machine image. जब मशीन की वर्चुअल इमेज क्रिएट की जाती है, तो उस समय वर्चुअल इमेज जो क्रिएट करने के टाइम पे जब वो मशीन शुरू होती है, तो उसमें उसका पासवर्ड स्टोर हो जाता है क्लाउड एनवायरनमेंट में. तो नो नीड टू सेंड इट थ्रू सम अदर वे. तो जो सेंडर को रिसीव करना है, उसी सेंडर को जब वो मशीन शुरू करेगा, उसका वर्चुअल इमेज शुरू करेगा, तभी मिलेगा वो, और बाकी किसी को भी नहीं जाएगा. नो सच टाइप ऑफ प्रोविजन इज अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल डिक्रिप्शन सिस्टम. जो नॉर्मल डिक्रिप्शन सिस्टम हुआ करता था, जिसमें अलग से पासवर्ड भेजा जाता था, यहाँ पासवर्ड भेजने का सिस्टम क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द वर्चुअल इमेज की ऑफ द वर्चुअल इंस्टेंस, तो स्टार्टअप पे ही ये क्लाउड एनवायरनमेंट में इनिशियलाइज हो जाता है, मिल जाता है. From the security perspective, how this can be done, how this information is being encrypted, where it is being done, and in what way it is being done. So these are the three questions which surrounds the security perspective, data security perspective. Matlab, you are not totally aware of how, where, and what information is being how these things, matlab data security, how it secures the data. The intruder does not know how the mechanism is being implemented to secure the data. किस तरह से data secure की जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता cloud environment में. Even those who are working with the cloud environment and those who are working with the servers, they also don't know, because once it is being implemented, इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर्स जो रहते हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद में उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. उन स्टेजेस के थ्रू वो क्रॉस होने के बाद में नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर्स रहती हैं. उनके बाद में वो कहाँ किस तरह से मैनिपुलेट हो गया, फिजिकली कहाँ पर अवेलेबल है, वेयर इज द लोकेशन ऑन वेयर योर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. जैसे अगर सपोज मैं अभी आज की बात कर रही हूँ, आई एम कनेक्टेड विद यू यूजिंग अ क्लाउड एनवायरनमेंट. क्लाउड एनवायरनमेंट के थ्रू मैं डेटा सेंटर्स जो है, उसके थ्रू हमने इंफॉर्मेशन को आपके थ्रू ट्रेवल करवा रहे हूँ. मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, सेंड कर रही हूँ. एट योर स्क्रीन यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स. So how the network traffic is being managed, where my information is available, in what way you are accessing it, in what way I am sending it, that is not known to any person. That is internal matter. मुझे पता नहीं रहता कि किस तरह से सेंटर इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, किस तरह से रिसीव हो रही है, कहाँ लोकेशन स्टोर हो रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है. All these things are not being known to any person. This is the basic security perspective. Now the second security mechanism, security thing is network security. पहले हम data security देखा, अब network security देखते हैं. नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं, तो हम सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑन द वर्चुअल नेटवर्क सेगमेंट्स इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द फायरवॉल. अगर आपने फायरवॉल सुना होगा, तो ये फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है, और ये नेटवर्क की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है. बेसिक सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड इज इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इज थ्रू फायरवॉल. तो फायरवॉल जो होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जब वो ट्रैवल हो रहा होता है तब उसको लगाते हैं. तो जैसे हमारा एंटीवायरस वर्क होता है, उसी तरह से ये फायरवॉल वर्क होता है. फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है. इन नॉन वर्चुअल नेटवर्क सेगमेंट्स, अगर हम क्लाउड की बात नहीं करते, नॉन वर्चुअल नेटवर्क सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो उस समय suppose two servers in two different Amazon Elastic Cloud operates in same security groups. अगर दो सर्वर्स एक ही सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर वर्क कर रहे हैं Amazon क्लाउड के, तब भी उनको भी नहीं पता होता कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रैवल हो रही है, नेटवर्क ट्रैफिक कैसे है. दिस इज in non-virtual environment also, means being in a same security group, two servers are not able to know from where these things happens, how the information travel and can be decrypted. सर्वर बिलोंग टू मोर देन वन सिक्योरिटी ग्रुप. एक सर्वर अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो भी उसको कुछ पता नहीं रहता कि किस तरह से ये वर्चुअल नेटवर्क सेगमेंट्स जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल हो रहा है, या डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है. सर्वर इज सेम server in same security group may be able to talk to each other at all.
सो सर्वर इन द सेम ग्रुप में जो सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन है वो भी एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सर्वर्स इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट्स में नॉट शेयर आईपी जो है वो इवन एक ग्रुप में रहने के बाद, एक सिक्योरिटी ग्रुप में रहने के बाद में भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो आईपी जो है, जो आईपी इज बेसिकली द इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर वो सेम ग्रुप में है तो भी पता नहीं चलता उसका आईपी क्या है. ठीक है. सर्वर इन इलास्टिक क्लाउड कैन सी द नेटवर्क ट्रैफिक बाउंड फॉर टू द अदर सर्वर्स. अगर इलास्टिक टू सर्वर्स है तो वो नेटवर्क ट्रैफिक को अगर वो बाउंड करता है अदर सर्वर्स को तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता इंफॉर्मेशन का कि हाउ दैट इज बीइंग डन. ओके. Now let's see the concept of the firewall. Firewall protects the perimeter. This firewall is the basic concept which is used in the network security. So this is the perimeter. This is the load balancer at the outer perimeter. In the inner perimeter is the application servers DMZ. Okay, this is the interface of the network security and this is the internal database. Now the firewall protects the perimeter of one or more network segments. जो फायरवॉल है वो दिस पूरा ये जो पूरा फायरवॉल है ये बेसिक फायरवॉल का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द पेरिमीटर, प्रोटेक्ट्स द नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है. मतलब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक सेटअप किया हुआ है, सिक्योरिटी बनाया हुआ है, अपना सर्वर बनाया हुआ है, तो उस सर्वर को दूसरे इंट्रूडर ने हैक नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल्स यूज करते हैं. उसका जो आउटर पेरिमीटर रहता है उसमें लोड बैलेंसर रहता है. Now it allows the data to travel through the HTTP hypertext transfer protocol security, file transfer protocol. ये तीन प्रोटोकॉल्स हैं. ये प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. तो जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपको HTTP या HTTPS या www उसके बाद HTTP इस तरह से लिखा हुआ आता है. कोई भी वेबसाइट है उसके पहले उसका प्रोटोकॉल जो वो यूज करता है, या तो वो वेब सर्वर यूज कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद में वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो वहां पर आता है. HTTP या HTTPS इंडिया में यूज होता है. और अगर फाइल डाउनलोड हो रही है तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें गेट और पुट करके फंक्शंस होते हैं. तो या तो अपलोडिंग करना है या डाउनलोडिंग करना है. तो ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये फायरवॉल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है. मतलब जब भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी इट इज ऑलवेज बीइंग इन द फॉर्म ऑफ अ एनक्रिप्टेड वे. अब इसमें एक लोड बैलेंसर रहता है. ये जो फायरवॉल की आउटर पेरिमीटर है दैट इज अ लोड बैलेंसर दैट राउट द ट्रैफिक इनटू DMZ. तो ये जो लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर का काम क्या रहता है, ये ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को DMZ तक पहुंचाता है ना प्रोटेक्टेड मैनर बाय अनदर फायरवॉल. तो यहाँ पर फायरवॉल्स की ये पेरिमीटर की लेयर है, एक लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी. तो ये हमारा इंटरनल डेटाबेस है. तो इंटरनल डेटाबेस इतना प्रोटेक्टेड रहता है कि ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता. तो इसको ये तभी अलाउ करता है परमिशन लोड बैलेंसर जब इसको पता होता है कि ये सही है, ठीक है, इसको राउट किया. राउट मीन्स फाइंडिंग आउट द बेस्ट रूट इन द नेटवर्क so that the information can travel to the application server DMZ. And DMZ are the application servers that make database and other requests across a third firewall in a protected system. अब ये DMZ जो है एप्लीकेशन सर्वर जो इंटरफेस है फायरवॉल का, वो एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है इंटरनल डेटाबेस. तो ये थर्ड जो हमारा फायरवॉल है, इतनी लेयर्स अवेलेबल है फायरवॉल प्रोटेक्टेड में. तो नेटवर्क में हमारा डेटा कितना सिक्योर है क्लाउड पे आप देखो. So many layers are there in the firewall that protects our this information over the network. Then no network segment or the perimeter in the cloud is there. Network segment or the perimeter in the cloud, it is the network. This is Zen is the internet on the internet. Zen cloud available hai. Then these are the group of rules: load balancer, application server, and database server. So same firewall example is being there. So where the network segment is not there or the parameters in the cloud is there. So cloud internet available है. Firewalls का concept Zen, group rules, load balancer है, application server और database server है. तो directly these are being connected to it. लोड बैलेंसर भी डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है.
यहाँ पर कोई फायरवॉल का कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है. डेटाबेस सर्वर इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट. So in this way the security is very less. So security है, no network segment is being managed in this case, security is very less. So it provides this type of environment and here it is being provided in the cloud, the firewall type of environment. तो अगर इसको firewall में डाल देते हैं तो ये लेयर लोड बैलेंसर आउटर पैरामीटर में आ जाता है, एप्लीकेशन सर्वर्स मिडलवेयर में आ जाता है और ये इंटरनल डेटाबेस. जबकि यहाँ पर जो है हमारा इंटरनल डेटाबेस भी डायरेक्टली क्लाउड को एक्सेसिबल है, एप्लीकेशन सर्वर्स भी है, लोड बैलेंसर भी डायरेक्टली accessible है. So I am closing today's session right now for